औकात में रहो, ये हाई भी कभी आ सकता है ये लो भी कभी भी आ सकता है. If I were to be in a corporate environment, I would be making this much money. Fintech, these are the cool zones जिसमें सब लोग कहते हैं हाँ इसमें पैसा डालने. This stuff does not work. Startups होते ही ऐसे हैं. Blah blah blah. Don't bitch about it later on. Hello ladies and gentlemen, my name is Rahil Bhatt. I'm Faria Syed. Welcome to Unboxing Success. और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं फैज़ान लगारी. He is a co-founder of Startup Syndicate. We talked about the ups and downs of the startup world in Pakistan and how to be a good mentor. We talked about the most important things you need to know to start up a startup. And why being your own boss is not as glamorous as it seems. Just trying to give you something. I'm just trying to give you something smoky to forget. I'm just trying to give We were जो अभी हम बात कर रहे थे कि इंक्यूबेशन सेंटर्स, ऑब्वियसली ये एक मेरे ख्याल पिछले 8-6 सालों में एक बड़ा बज़वर्ड है कि हर जगह इंक्यूबेशन सेंटर खोल रहा है. यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस अपना इंक्यूबेशन सेंटर्स खोल रही हैं. IB का इंक्यूबेशन सेंटर खुला, उनको फंडिंग भी मिली, सब कुछ हुआ एंड देन ख़त्म हो गया. इसी तरह 2 और यूनिवर्सिटीज़ को मैं जानता हूँ जिनके साथ सिमिलर चीज़ हुई. तो व्हाट डू यू थिंक ये सिनेरियो जो बिल्ड हुआ इतने अरसे में और फिर ये बबल बना, तो इज़ इट, डू यू थिंक इट्स वर्किंग, ये क्या इश्यूज़ क्या हैं, व्हाई इज़ इट हैपनिंग? Even though they're doing pretty good work, but academics that are not exposed to the business world that openly, it is very tough for them because this is something that is a cross between a science and an art at the same time, right? So when we were talking about startups, about the pitch of a startup, तो मैं एक तो होता है हमें पता है कि टेक्निकली ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, but at the same time I have sat with authors of books, I've sat with theatre artists, and we've understood that यार जब मैं खड़ा होता हूँ ना बात कर रहा होता हूँ, this is an art. I'm trying to sell my business by telling a story. You have to get them excited, you have to Yes. get them involved. The right tonality matters, the right hand movement matters, the right place to pause so that the message gets across. All of that matters a lot. So you're saying that is not happening in these centers? Again, no incubator is an expert themselves, right? And that part is a challenge. I believe that there should be people that are running the incubators or accelerators, should be people that have done business themselves, right? That adds a lot of value to it. At the same time, these people do get outsiders to come in. They'll say, hey, XYZ आप आगे coach कर दें, mentor कर दें, workshop करा दें, but it needs to be built into the DNA of the incubator itself. You cannot have an academic जिनका exposure इतना नहीं है या वो corporate दुनिया से अगर है, has its own learnings and what an experience, but you cannot expect them to understand the psychological factors of an entrepreneur जिसको अभी इनफैक्ट हम लोग कल ही कहीं पे बैठे हुए थे तो वहाँ पे बात हुई कि जी काफ़ी स्टार्टअप्स जो हैं वो बदनाम हो जाते हैं. क्यों? वो कल इस इंक्यूबेटर सेंटर में आएंगे, यहाँ से निकलेंगे, देन दिल इंक्यूबेटर हॉपिंग हम कहते हैं उसको, दिल गो टू अनदर वन, वो वहाँ जाएंगे एंड यू सी द सेम फेसेस रिपीटेडली अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड दैट कम्स ऑफ वेरी बैडली. एंड आई एम नॉट इवन अ फैन ऑफ दैट कि भाई बिजनेस कर लो, बिकॉज एवरी बिजनेस मे नॉट बी अ स्टार्टअप बट एवरी स्टार्टअप इज़ अ बिजनेस, नीड्स टू मेक मनी. हम कहते हैं यार वहाँ पे फोकस करो, क्या तुम अवार्ड शोज में घूम रहे हो या ऑल ऑफ दैट. सो माय को-फाउंडर उरूज, शी एक्चुअली जंप्ड इन एंड शी सेड कि यू नीड टू अंडरस्टैंड ना, लेकिन कि दीज गाइज आर डूइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग दे नीड टू सर्वाइव, बिकॉज इनके पास नौकरियाँ तो है नहीं. आधे से ज़्यादा लोग कहते हैं यार हम यही कर रहे हैं या पार्ट टाइम कर रहे हैं या नौकरी छोड़ के देव जंप्ड इन टू द डीप एंड ऑफ द पूल. सो इट्स the psychological aspect of that hey I have to make payroll, I have to take some money home, मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस भी कुछ हैं. इफ़ आई वर टू बी इन अ कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट आई वुड बी मेकिंग दिस मच मनी वर्स जो मेरे दोस्त बना रहे हैं, और एक मैं हूँ यहाँ पे जो दिखते हैं बड़ा कूल सुपरस्टार लग रहा है और जेब में पैसे नहीं है. वो चैलेंज. सो ऑल ऑफ दैट नोबडी एल्स कैन अंडरस्टैंड दैट. सो दैट साइकोलॉजी ऑफ दैट नीड्स टू हैव समबडी प्रेजेंट दैट हैज़ गॉन थ्रू द प्रोसेस. सो एन एकेडमिक जो कि स्कोरिंग एंड मार्किंग करने वाले मैकेनिज्म पे चलते हुए आ रहे हैं, आई एम नॉट ट्राइंग टू डिस देम, बट they do not understand that fully. They can be part of a team, part of the team, but yes, they can't be heading it or they can't be the ecosystem उनके around नहीं चल सकता. You have to have the experience. Otherwise आए साथ में काम करें, कोई मसला नहीं है, मज़ा आएगा. उसके बाद समझ में आती है क्या चीज़ होने वाली है. Practitioners and theorists are always different. Yeah. Also I feel कि जो वो भी बुक्स भी जो हम पढ़ रहे हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर, वो अभी हम किसी और से बात कर रहे थे कि वो इतनी
हमारी कल्चरल एक तो उसके अंदर नहीं लिखी हुई गई हुई वो आपको यूरोप की या अमेरिका की मिल रही हैं। अब आप उनके आइडियाज़ को यहाँ पे आइडिया तो ले लेते हो मगर उसकी इन्वायरमेंट को नहीं आप समझ सकते। Absolutely. उसमें लिखा हुआ है कि जी बैंक से जाएं, लोन ले लें, ये करें, वो करें, मॉर्गेज कराएं, ये करें। वो भाई कहाँ से मॉर्गेज कराएं, कहाँ से लोन लें, कहाँ से डॉलर आएँ, कुछ भी नहीं पता आपको यहाँ पे, और यहाँ पॉसिबल ही नहीं है। सो समबडी हु हैज़ बिन ऑन इनसाइड द ग्राउंड एक्चुअली, नॉट ऑन ग्राउंड, कि जो अंदर से होके आया हो, जिसको पता हो कि यार पैसे लेने हैं तो ऐसे मिलेंगे, खर्चा देना है तो ऐसे होगा, घर कैसे चलेगा, शायद नौकरी करनी पड़े तुम्हें, पहले साल नौकरी ना छोड़ना, इस तरह की एडवाइस। ये चीज़ें हम लोग बोलनी पड़ती हैं, हम उनको बताते हैं। काफ़ी लोगों से स्टार्टअप्स हम बंद करवा के उनको कहते हैं जाके नौकरी करो, दिस इज़ नॉट फॉर यू, मे बी नॉट राइट नाउ, मे बी आफ्टर अ ईयर कम बैक टू इट। I think a lot of us watch Shark Tank and they say कि ये आपका side hustle है क्या? You're not dedicated. And then उसके शौक में a lot of people might leave all their primary incomes and then just अगर become करना है like करो। मैं तो कहता हूँ भाई आप ही को बर्दाश्त करना है, आप ही ने चलाना है। इफ़ यू वांट टू डू इट, गो आउट एंड टेस्ट इट, बट एक्सक्यूज माई लैंग्वेज, बट डोंट बिच अबाउट इट लेटर ऑन। ठीक है ना, मसला होता ही है, नहीं चला, ओ दिस स्टफ डज नॉट वर्क, स्टार्टअप्स होते ही ऐसे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। नहीं, जस्ट बिकॉज योर्स डिड नॉट वर्क डज नॉट मीन अदर्स फेल एज वेल, और फिर राइट? पाकिस्तान को ब्लेम करेंगे, ये मुल्क में मैं कहीं कुछ और नहीं होता कर ना सकता। तो मैं कुछ और। मैंने कहा भाई मुझे कितनी, मैंने कहा तुम्हें अंदाजा है कि बाहर कितना, यहाँ पे 10 कंपनियां तुम्हारे अगेंस्ट खड़ी होंगी, वहाँ 3000 कंपनियां होंगी सिर्फ तुम्हारे वाले इतने से सेक्टर के अंदर, नीश तुम्हारी में, उसके अलावा मल्टीपल और होंगी, तुम कभी मर के भी कम्पीट नहीं कर सकते वहाँ तो वो सवाल ऐसे पूछेगा कि तुम बोलोगे ये सवाल हमने कभी सुना भी नहीं है। तो हमारे यहाँ वो एक कॉन्सेप्ट है कि ब्लेमिंग किसी को, यार ये मार्केट रेडी नहीं है, ये लोग मुझे मिले, मुझे बेवकूफ़ बना दिया, मुझे लूट लिया, मेरा आइडिया छीन लिया। Yeah. सो ऑन दैट नोट के बाइकिया, ऑब्वियसली वी वर डूइंग द रिसर्च एंड यू सॉ लर्निंग, तो बाइकिया का जो मेरे ख्याल को 5-6 साल पहले की बात है, जब बाइकिया नहीं आया था, आई एम श्योर मे बी वो प्रोसेस में होगा। सो दिस फ्रेंड ऑफ माइंड फ्रॉम IBA केम टू मी, इज लाइक मेरे पास एक आइडिया है। मैंने कहा अच्छा बताओ क्या है। नहीं मैं यार वो मैं शेयर नहीं कर सकता। तो मैंने कहा भाई तो आइडिया तो गूगल करो, 3000 आइडियाज़ हैं। तो मैंने कहा जो करेगा, तो खैर बड़ा उसको पहले मैंने समझाया, मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं करना मत करो, मगर फिर कैसे करोगे। अच्छा फिर उसने बड़ी मुश्किल से शेयर किया। सो सिमिलर आइडिया कि उसने कहा कि करीम और ये आई हुई थी, तो गाड़ियों के लिए अगर वी गो 1 लेयर डाउन तो बाइक्स इतने मल्टीपल हैं और इतना हो सकता है। मैंने कहा अच्छा, तो वो 2-3 पेजेस का उसने प्रेजेंटेशन में थी। मैंने कहा रूल ये, मैंने कहा भाई कम अज़ कम, मुझे कुछ नहीं पता था उसके बारे में। मैंने कहा आई ऑल्सो वांट टू लर्न कि ये बिजनेस स्टार्टअप कैसे होता है। तो आई टोल्ड हिम कि मैंने कहा तुम ना 60 पेजेस लिखने पड़ेंगे हमें, 60 पेज जब कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो इसका मतलब है कि इतनी डिटेल हमें भरने पड़ेंगे, तो हमें सोचना पड़ेगा क्या लिखें इसके अंदर। सो दैट इज़ द रिसर्च दैट वी विल डू। Right. सो हमने निकाला, रिसर्च करनी शुरू की कि 5 साल पहले कितनी बाइक्स बनती थी, अब कितनी बनती हैं, अगले 5 साल में कितनी बनेंगी, और फिर रेवेन्यू मॉडल क्या हुआ, ये वो करते कराते हमने किसी तरह से 50-60 पेजेस भर लिए। मैंने कहा मगर ये बहुत हाइपोथेटिकल है। तो मेरे कुछ चिन्योटी और मेमन दोस्त थे, तो मैंने कहा आओ ज़रा चलते हैं। तो वो सारे बैठे हुए थे, चाय चल रही थी। तो मैंने कहा यार ज़रा हम तुम्हें एक आइडिया प्रेजेंट करते हैं। हमने आइडिया प्रेजेंट किया, अगले 2 घंटे तक उन्होंने जो लिए हमारी ना, उन्होंने कहा वो भाई वो 8 ने इससे मल्टीप्लाई कर, 2 दूनी 4, ये वो कर करा, आपको पता है वो ऐसे टिप्स पे। तो लिटरली ऐसा हुआ कि मतलब ऐसा लगा कि बस अभी बंद करो और लैपटॉप भी फेंक दो हमारा, ये इतना बुरा चीज़ है। खैर हम गाड़ी में आए तो मेरे दोस्त की आंखों में ना आंसू। मैंने कहा क्या होगा। अरे बस यार फ़ायदे, मैंने बोला था तुम्हें, ऐसी आइडिया तुमने भी मुझे चढ़ा दिया ऊपर। मैंने कहा इससे अच्छी R&D 2 घंटे में नहीं हो सकती, ठीक है ना, इतना सारा फीडबैक मिला। मैंने कहा लेट्स सिट ऑन इट एंड सी कि क्या हो सकता है। खैर 1 हफ्ता गुजरा तो फ़ोन आया एक दोस्त का उन्हीं में से, क्या कर रहे हो, क्या हुआ तुम्हारे बकवास आइडिया का। मैंने कहा कुछ नहीं यार, बस काम कर रहे हैं उसके ऊपर। अच्छा अगर मूड हो तो 1 CR मेरा लगा देना। मैंने कहा अच्छा चाहिए कितने तुम्हें पैसे। मैंने कहा अच्छा मैं बताता हूँ, अभी मैं डिस्कस करता हूँ। दूसरे का आया कि यार मैं पूरे पे इन्वेस्ट करूँगा, कोई और पार्टनर नहीं होगा हमारा। Okay. तो 3 बंदों ने इसी तरह से वो कर लिया। तो कहता है अच्छा क्या सब कुछ है। फिर कहता है कि यार वो मगर मैं नौकरी तो नहीं छोड़ सकता। मैंने कहा इन्वेस्टमेंट मिल गई, एक बंदा करोड़ रुपए लगाने के लिए रिस्क तुम पे ले रहा है, तुम अपने पे रिस्क नहीं ले रहे हो। और ये 1-2 हफ्ते बातें चली, उनका कहीं फ़ोन आया, उसने बोला यार मैं सोच रहा हूँ मैं अपनी बेगम से पूछूंगा ये वो। अब वो फ़ौरन एकदम से पीछे हो गया, उन्होंने कहा भाई ये आदमी इतना डिसीजन नहीं ले सकता। तो सब फ्लैट लाइन हो गया। एंड फिर थोड़े अरसे बाद मैंने पहला मैसेज मेरा हो गया, मैंने कहा ये आप देखो आ गई है बाइक किया। सो दैट वाज अ स्टोरी जो कि For sure. So again, Baikia is not an original concept at all, and that's okay. ये सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, हम कोई यूनिक, कोई इनोवेटिव आइडिया लेके आएंगे। Yeah, to be innovative that means nobody else has ever thought of it before,
आप पहली दफ़ा कर रहे हैं, एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी टफ थिंग टू डू. हाँ, कोई रिसर्च नहीं है, कोई Nobody is reinventing the wheel. It's about building a smarter solution. Yeah, there's similar things like Careem, of course, Uber था बाहर, Lyft था बाहर. उन्होंने कहा कि भाई इस मार्केट के अंदर क्या हो सकता है जो नहीं हुआ अभी तक. It's successful XYZ जगह के अंदर, यहाँ पे भी उसको रिपीट कर लेते हैं. That's about it. And there's no harm in that. It's worked. Bikeia, even though so I'm ex-Bikeia, of course, but it's not because of that that I love the company. It's because of the fact that that's I think the only Pakistani company which is made for Pakistan, is operating in Pakistan. There are no shashkas in it. वहाँ पे मैंने ये कहानी पहले भी बताई थी, आई गेस कहीं. आई जॉइंड इन जनवरी ऑफ दैट ईयर, वेरी कोल्ड. मैंने गया, मैं उनको जाके COO जो है उनके CTO को, सॉरी, बल्कि मैंने कहा यार मुझे स्वैग बैग तो दे दो. बाइकिया ज्वाइन की है मैंने, तो आई वेयर बाइकिया हुडी एंड ऑल. वो शक्ल देखते रहे 2 मिनट के, मैंने पूरी इसको स्पील ली. मैं कहा ये कूल, क्या क्या है हमारे पास. कहते हो भाई कुछ नहीं है, जाके काम कर. मैंने कहा क्या मतलब कुछ नहीं है. कहते हम इस पर नहीं करते, वी फोकस ऑन नंबर्स. यार चल काम करते हैं बैठ के, एक्सेल की शीट खोल. मैंने कहा व्हाट्स हैपनिंग हियर. देयर वाज नो हाई फाई फर्नीचर, नो नथिंग, वेरी No सिंपलिस्टिक beanbags? स्टफ. नो बीन बैग, beanbags. नो बीन बैग. स्टार्टअप नहीं है भाई, सही नहीं है. यहाँ नहीं That's काम the करना. thing. And I was like, okay, what's happening here? And the first month and a half was so tough for me. You have no idea. Even though we've done this before numerous times, but biking scale was different, right? The speed was different. और वहाँ पे मैं जहाँ पे एक टेबल रख के बैठा हूँ, यहाँ पे गैप है, बराबर में नहीं बैठा हुआ है. ही इज़ अ CEO, नो भरम, नो नथिंग. आप उसको बोलेंगे जाके कहीं पे यार कॉफ़ी पीते हैं तो शायद कभी चल जाए, अदरवाइज कहते हैं यार चल दाल चावल खाने के लिए चलते हैं. वेरी सिंपलिस्टिक, वेरी डाउन टू अर्थ. दे नो देयर शिट, दे आर हियर टू डू दैट. एंड देयर इज़ नो अदर कंपनी दैट हैज़ रेज जस्ट $35 million और उसमें अभी वो प्रॉफिटेबल है. और जैसे चाय की कहानी आपने बताई ना, चाय पे ही बैठ के मुझे मुनीर ने कहा था मैं एक चीज़ बना रहा हूँ, यू शुड ज्वाइन मी. मैं कहा क्या. कहता है बाइकिया. मैं कहता दैट्स अ शिटी नेम. तो कहते हैं नहीं इट्स अ गुड नेम. कहते बाइक से मैं क्या यार बाइकिया मुंह पे शायद चढ़ जाए, और अब चढ़ गया है सबके मुंह पे. इवन obviously द बात. कैंपेन, द भाई किया वाली Yes. कैंपेन, भाई अच्छा किया. मुझे शुरू में बड़ी चीज़ी लगी है ना? यार ये क्या बना दिया. बट देन व्हेन आई रियलाइज कि यार जो मार्केट है इसकी और जो कंज्यूमर है इसका, या जो लोग देख रहे हैं उनके लिए ये बड़ा सही राइट टारगेट मार्केट. गोल्डन है हर तरह से. आई फील लाइक आई honestly I haven't ever used it. I'm going to be very frank here, but even as somebody who's never used it, I know all about it because That's the best I'm like आप बाइकिया कर लेना, आप बाइकिया क्यों नहीं करते. स्टार्टअप इज एन इकोसिस्टम एक डेवलप करने की So we're a बात है. startup enablement platform. ओके. So the reason for choosing that was that there is no equivalency of that up till now. If you even Google it, maybe you will find, after we set this up, after a few months of that, we found somebody else using a similar terminology. Reason for that is हम लोग incubator नहीं है, हम लोग accelerator नहीं है. What is the तो difference? करते क्या हैं? define. यही तो मजे की बात थोड़ा है. सा define कर दे. Yes. So हम लोग मतलब करते if क्या हैं? I am a person who has a idea of a startup, Yep. when do you come in? So here's our pitch. Our goal is 100 funding ready startups in the next 3 years. 50 of these would be idea owners like yourself maybe. You come in and say मैंने कभी ज़िंदगी में startup नहीं किया, मुझे नहीं पता, but I have experience in the field, मुझे करना है. Okay, that's where we start the hand holding for you. We'll help you completely formulate the idea. We'll help you do the pitch decks. We'll help you everything and start it off for you, with you, right? Do I pay you? So we have different kinds of stuff and services, but most of these services are paid. So that's where we are differentiating it, because it's a business at the end of the day. Yeah, right? that's the question. If I can't make my own business sustainable, how can I claim कि यार आपका startup sustainable होना चाहिए? मतलब कि यार आप पैसे नहीं बना रहे हो तो आप मुझे क्यों कह रहे हो? तो हम लोग बेशक हमारे इवेंट्स की होती है, टिकट 750 रुपये की होती है, 1000 रुपये की होती है. These events happen every month in 3 cities now in Pakistan. Then 5 इवेंट्स में क्या हो रहा है? So these events are networking, learning and connectivity events as we call them. ठीक है. उसमें कौन there लोग are आ रहे हैं? हर किस्म के लोग. सो इस दफ़ा ये है गेमिंग और एनिमेशन मंथ चल रहा है अभी सितंबर के अंदर. इसमें अभी इस्लामाबाद इवेंट हो गया है, लाहौर और कराची में भी होंगे. तो वी हैव दीज 3 इवेंट्स. कौन आता है इसमें? हारून, फ़ाखिर हारून, राइट? ही हैज़ अ animation studio, Burqa Avengers and whatnot. So we were in Islamabad like 2-3 days ago, and he was there. He was talking about Burqa Avenger, what's coming next, all of that stuff.
there's a Breshna.io के नाम से there's a startup. तो this female-led startup, she actually raised $1.2 million on the sidewalk in New York because there was a show where she pitched so perfectly, they were able to raise money. They make no-code platform है जिसमें आप games बना सकते हैं. Anybody can do it, and they're doing that. Then there's somebody else जो कि अभी Kids Land के नाम से एक है YouTube का channel. They have about 2.1 billion views. Wow. So the guy who had tied hands with them, Hassan bin Rizwan, Moonshot Animations, he was one of the speakers. So we pick up these themes and we say, let's talk about this. Let's gather an audience around this, and then we grab a few startups and say, यार आपको इससे क्या फ़ायदा हो सकता है अगर आप similar field में हैं या आपको शुरू करना है. These are people you learn from. So उधर ही Salam Kids TV एक है, husband wife team. These guys are making educational content for kids within the realms of the religion as well, making sure कि जी there isn't something that would mess with their heads. That was a startup that was there, so they were presenting there as well. इसी चीज़ को फिर हम लोग ना रेप्लिकेट करते रहते हैं. हर महीने 3 cities में भी कर रहे हैं. We're expanding to at least 7 more cities in Pakistan. But this is the revenue model right now. So this is just one of the revenue models, right? Then we have startup membership packages. So we offer $1 million worth of discounts and perks. So if you just pay 10,000 rupees per person per year, they give you access to that. Then we have discounts on everything possible. आपको जी अगर अभी हम बताइए हम बहाना ख़त्म कर रहे हैं लोगों का, मैं नहीं शुरू कर सकता. मतलब कि आप अपने आप को enable कैसे कर सकते हैं? How do you equip yourself with the skills, with that network, with We any provide you technical, all the puzzle pieces basically. So if you want to get your company registered, we have a partner for that. वो आपको 40% ऑफ रैक रेट पे आपको रजिस्ट्रेशन करके देगा, टैक्सेशन करके देगा. आपको वेबसाइट की होस्टिंग चाहिए, वी हैव पीपल आर गिविंग इट फॉर फ्री. वी हैव दोज. You want social media presence, उसके tools वगैरह हैं. There's somebody that's giving away up to 50% off of the rack rate, and these are top products in the market, not only here in North American market. They're giving it away. तो हमारे पास जब आते हैं कोई बोलते हैं पैसे नहीं हमारे पास. अच्छा, मैं कहूँ 10,000 रुपये साल के मेम्बरशिप हैं, आपको सब कुछ मिल जाएगा उसके अंदर. टू एक्सपेंसिव. कॉफ़ी जाके 1,200 रुपये की पीते हो? हाँ. दिस इज़ 833 रुपीज़ अ मंथ. यू कैन अफोर्ड इट. ओके. फिर वो जाके बात शुरू होती है. देन वी डू दिस 1-on-1 कोचिंग सेशंस एवरी मंथ. सो एनी गिवन वीक एनीवेयर फ्रॉम 4 to 7 कॉल्स हमारी होती हैं. 45 मिनट के सेशन होते हैं. वेयर अ स्टार्टअप कम्स इन एंड दे से हे पिच डेक बना लिया मैंने, उसका पिच डेक रिव्यू करके दें. सो वी डू पिच डेक रिव्यूज़ फॉर देम. या समबडी कम्स इन एंड सेज आई हैव 25 years of experience in XYZ field, मुझे अब स्टार्टअप करना है, वेयर डू आई स्टार्ट? how old is your oldest startup? I mean, in terms of Age-wise, age, the This gentleman who had 25 years of experience, I believe he was in his early 50s. wow, mashallah. An That's- average entrepreneur who's successful is in the 44-45 की range. This is the world over statistic जो होता है. अच्छा, एक और जो मिसकंसेप्शन है जो जनरली होता है कि 18-20 साल का बच्चा ही स्टार्टअप बनाएगा. तो मुझे जहाँ तक लगता है, मैंने कहा फॉर इंस्टेंस इन माई एज राइट नाउ आई एम 41 एक्चुअली, और मुझे लगता है कि अब जो मेरे पास नॉलेज है ना, अगर अब मैं इन्वेस्ट करना चाहूँ तो आई थिंक आपका मिड 30s से लेके 50 के बीच के अंदर जो लोग हैं ना, बिकॉज उनके पास कोई ना कोई रगड़ा लग जाए उनका. ठीक है, नौकरी कर तमीज़ ली भी आ गई है, है. हाँ, बिजनेस में लॉस कर ली, कुछ भी कर लिया आपने कुछ ना कुछ किया. अगर इफ़ यू अराउंड एनी काइंड ऑफ बिजनेस, पीपल लाइक मी फॉर इंस्टेंस, मुझे भी शौक है मगर मुझे भी नहीं पता कि मैं किसके पास जाऊँ. वीसी कहाँ से मिलेगा, कहाँ रहते हैं वीसीज, ये एक सवाल है. या वही बात है, पिच डेक बना तो लिए बट हु विल इवैल्यूएट इट, यार ये सही भी है कि नहीं. आर दे हु आई एम प्रेजेंटिंग टू, व्हाट आर दे लुकिंग फॉर, आर दे लुकिंग फॉर द. अच्छा, फिर नंबर्स कैसे आए? अब ये इवैल्यू, अब शार्क टैंक पे देखते हैं 10%, 3% इक्विटी, 10 करोड़ पे. अभी भाई कैसे हो रहा है? ठीक है, आप फार्मूला तो निकाल लोगे, मगर हाउ इज इट अप्लाइड टू योर बिजनेस एंड आपका बिजनेस टाइप. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स. तो आई थिंक कि वो इस एज में मुझे लगता है लोग जो डिस्करेज होकर बैठे हैं, यार हम 18 साल के होते तो हम करते ना. Anyone, literally anyone can come in, literally. The reason, so हर एज का अपना फ़ायदा है. एक है जो the older you are, you have some experience, हो सकता है corporate jobs कर ली हो, तो the discipline that you get over there, that, so I'll even take it back a bit. When you go and you apply to a job, you're a freshie. आप जाके उनको बताते हैं, वो कहते हैं कि यार वो आपसे क्यों कॉलेज डिग्री क्यों मांगी जाती थी पहले? Why? Because it's not because वो किस prestigious college से है और blah blah blah. I think it's more of the fact कि hey, for 10 years or 14 years or 16 years of education, you had the discipline to wake up early in the morning, to attend the classes, to actually study, pass the grades. You can live a structured life. Now you are ready कि you come into our structured organization. I think that's what they're more looking for. और अब Google वगैरह जो डिग्री नहीं मांगता,
क्या मांगता है? एक्सपीरियंस मांगता है. Again, the experience proves what? You've gone through all of this and now you're very well prepared for it. So either you go through that preparation or you're old enough and you've gone through that preparation, corporate job at that preparation, does not matter. If you're young, the best thing that you have is you have time. You can experiment. मैं स्टार्टअप्स को एक दुआ दे रहा होता हूँ जिनको बद्दुआ लगती है कि मैं उनको कहता हूँ आई होप यू फेल. चले ये क्या बात हुई? कहते हैं अच्छी बात है, 2-3 दफ़ा मुंह के बल गिरोगे, समझ में आ जाएगा. On another podcast even I actually have a favorite poem जो कि मैं महीने में 1-2 दफ़ा पढ़ता हूँ क्योंकि I was one of those guys as well a few years ago जो कि स्टेज पे खड़े हो कहता है oh I'm the cool entrepreneur. मेरी बात सुनो, तुम लोगों को क्या पता? You know that kind of that happens. What's the poem? It starts off by बैठ जाता हूँ मैं मिट्टी पे अक्सर क्योंकि मुझे मेरी औकात अच्छी लगती है. राइट मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना. राइट सो इट्स अ वेरी मज़ेदार किस्म से आपको ना बिल्कुल वो बता देगा जी आपकी औकात ही है इंसान बने. राइट सिमिलर टू दैट एज अ कपल ऑफ अदर पोएम्स. इफ़ है बाय रडियार्ड किपलिंग, लव दैट. इनविक्टस है. I read some of this stuff repeatedly, some of the videos I watch repeatedly because वो अपने आप को बताना होता है कि यार फैज़ान you have done you know maybe amazing stuff at times but other times you fall you know numerous times you fall flat on your face. औकात में रहो. ये हाई भी कभी आ सकता है ये लो भी कभी भी आ सकता है. तो आई थिंक दैट आई हैड टू लर्न. तो एक सेल्फ अवेयरनेस जैसे हम कहते हैं ना, दैट हैड टू कम फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस. हम वो कहते हैं यार जल्दी करो लेकिन बी पेशेंट. वो कहते हैं यार ये क्या बात है, जल्दी करना है या पेशेंटली करना है? कहते हैं यार जल्दी करो. क्यों? क्योंकि यू नीड टू फेल फास्ट, टेस्ट इट आउट. नहीं चलता ना चले. वो कहते हैं यार बकिन मेरे फलाने ढिमकाने दोस्त मजाक उड़ाएंगे, खाला बोलेंगे अरे ये तो देखा मुझे पता नहीं चलने वाला है. सो व्हाट, नोबडी इज़ गोइंग टू डाई. राइट, गो अहेड एंड टेस्ट इट आउट. And the patience bit comes in because you're not going to be a billionaire and millionaire. Not everybody is going to be unicorn. वो जब कहते हैं ना कि यार स्टीव जॉब्स वाज अ ड्रॉप आउट या ये मार्क ज़करबर्ग वाज अ ड्रॉप आउट, दे वर ड्रॉप आउट फ्रॉम MIT एंड स्टैनफोर्ड जहाँ पे मैं तो घुस भी नहीं सकता जहाँ पे. राइट, दैट कंपैरिजन नीड्स टू बी अंडरस्टूड. तो हम ये बता रहे होते हैं कि यार यू नीड टू बी पेशेंट विद इट. सब कुछ ओवरनाइट नहीं होने वाला. हम लोग बता रहे होते हैं कि यार ऐसे नहीं तो ऐसे होता है. एंड कभी कभार उनकी आंखों में नज़र आ रहा होता है कि यार ये बंदा चुप कब होगा, टाइम ज़ाया कर रहा है, गलत हो गया. क्यों तो ये इधर नहीं आना चाहिए था. वो कौन है इसके पास चेकबुक है, उसके पास जाते हैं हम लोग डायरेक्टली. किसके पास है चेकबुक? चेकबुक देखें बहुत लोगों के पास है लेकिन वो लोग पैसे लगाते नहीं है. मसले की बात ये नहीं. अच्छा, तो ये जो VCs हैं, एक जनरल क्वेश्चन है कि ये VCs कौन हैं ये लोग? हु आर दीज पीपल? आर दे लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं, लोकल ब्रांड्स हैं लोग, या ये फॉरेन जो कुछ लोग जो बीच मीडिया क्राउड फंडिंग हैं जो लेकर आ रहे हैं? क्राउड फंडिंग इज इलीगल. क्राउड फंडिंग कौन करेगा? एंजल इन्वेस्टर्स हैं, क्या है? इलीगल है ना अभी तो पाकिस्तान में. यू कांट डू क्राउड फंडिंग, इट्स इलीगल. इट्स इलीगल. दुबई में ऑफिस खोले आपने? So anything that includes financial transactions of any sort, it has to go through SCCP and State Bank. Okay. That's illegal right now, so fine, right? No problem. What is the legal way? So अभी कैसे हो VCs रहा है? हैं कौन? So VC आपको क्या लगता है आपके ओपिनियन में कि if I'm a VC, am I rich? So these VCs actually are, so imagine a VC itself is like a mini startup because वो VC जो है वो general partner जिसे हम GP बोलते हैं उनको. GPs go to the LPs. These are limited partners. These limited partners are the people that put in all the money because I am showing them a सुहाने से ख्वाब कि यार मैं 50 स्टार्टअप्स में पैसे लगाऊंगा. उसमें से 5 जो होंगे ना उनका छक्के लगने का चांस होगा, 2 का छक्का लगेगा और सारे पैसे जितने हैं ना उस 40 मिलियन से हम लोग 400 मिलियन बना लेंगे और आपको उस हिसाब से पैसे वापस मिल जाएंगे. दैट इज़ व्हाट द VC जो सामने शक्ल होती है ना उसका अपना पैसा नहीं होता. VC जो है ना वो भी धंधा है, सीधी सीधी बात है. दे पुट मनी इन बिकॉज दे वांट 10x 20x 40x आउट ऑफ इट. उनको पैसे कौन दे रहा है? Those are high net worth individuals खुद. मस कौन है वो मसलन? कोई भी हो सकता है. सो इट कुड बी इंडस्ट्रियलिस्ट somebody. सो फॉर एग्जांपल हमारे पास करीम माफिया एक ज़माने में मशहूर हो गई थी. करीम माफिया क्या है जी? करीम से उन्होंने बहुत ढेर सारे पैसे कमा लिए. अब उन्होंने अपने छोटे स्टार्टअप्स और बना लिए. दे वर एबल टू रेज फंडिंग. वाई? बिकॉज देर एक्स करीम. राइट. उसी तरीके से बाहर होते था पेपाल माफिया. सो व्हेन पेपाल लॉन्च्ड उधर के जो थे वहाँ पे कौन था? इलॉन मस्क था उसमें. उसमें 4 और ऐसे लोग थे जो कि अब जो हैं वो फेसबुक लिंक्डइन वगैरह के भी फाउंडर्स एंड इन्वेस्टर्स थे इनिशियली.
तो उन लोगों ने वहाँ से पैसा बनाया, उन्होंने कहा अब क्या करें, तो वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट समथिंग, देन क्रिएट अ न्यू कंपनी एज वेल, बट लेट्स स्टार्ट इन्वेस्टिंग स्मॉलर चंक्स हियर एंड देयर, एंड दैट्स वेयर इट काइंड ऑफ ट्रिकल्ड डाउन. Ashton Kutcher, for example, the actor, he's an investor, right? There are other Hollywood actors out there that do the same stuff. पाकिस्तान में क्या कहाँ से आती है इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा? So पाकिस्तान में बाहर से आती है ज़्यादातर. बाहर से कहाँ से, मतलब वो So it रीजन है could कोई? be, it could be US, it could be Germany, Europe, but mostly it's the US market, right? That's where they invest in. Saudis also, वो भी हैं, बिल्कुल वो भी करते हैं. But the challenge is कि यहाँ पे खैर यहाँ पे सिर्फ नहीं है, आजकल तो वर्ल्ड ओवर आई थिंक फंडिंग थोड़ी गिरी हुई है, बट यहाँ पे मार्केट के हिसाब से, हालात के हिसाब से बड़े चैलेंजेस आते हैं. सो अगर आपको फंडिंग लेके आनी है तो आपको कंपनी एक बाहर खोलनी पड़ेगी, फंडिंग वहाँ पे आएगी, डायरेक्टली पाकिस्तान पैसा नहीं आएगा. और हम उसको कैपिटल कॉल्स कहते हैं कि हर थोड़े देर के बाद कैपिटल कॉल किया जाता है, वहाँ से पैसे आएंगे, दोबारा से स्टेट बैंक आपसे पूछे कि पैसे क्यों मंगा रहे हैं, जी हम इस वजह से मंगा रहे हैं. 6 महीने के बाद दोबारा पैसे मंगाए, स्टेट बैंक आप पैसे क्यों मंगा रहे हैं, जी 6 महीने पहले जिस वजह से मंगाए थे उसी वजह से मंगा रहे हैं. तो दोज आर चैलेंजेस हियर. And how is it dispersed? I mean, are there specific spaces, specific sectors, edtech जैसे हो गया, agritech हो गया, are there like hot zones that people are investing They in? come and go all the time. So nowadays cyber security, AI, ये है जो fintech, these are the cool zones जिसमें सब लोग कहते हैं हाँ इसमें पैसा डालना है. कोविड जब था तब edtech था, ठीक है, Byju's in India grew so big, now it's like a tenth of its original worth, right? The CEO was crying during an interview directly, खुद बैठा हुआ. तो that kind of stuff happens and that's a norm, right? But at the same time अब जाके after all of that लोगों को थोड़ी अकल आई है, तो अब वो फूक के पैसा डालते हैं एंड वो कहते हैं कि यार सस्टेनेबिलिटी कितना जल्दी आ जाएगी, क्या हो जाएगा, उस हिसाब से पैसे डालते हैं. एंड दैट्स द वे इट शुड बी, विच ब्रिंग्स यू टू द पॉइंट कि लोकली किसके पास पैसा है. ऑल दी स्टेट्स, ठीक है, ऑल द बिग कंपनीज, मेमन्स, चिन्योटीज, ये सब लोग हैं. जी कर रहे हैं इन्वेस्ट? वी आर ट्राइंग टू मेक देम इन्वेस्ट. कुछ हैं जो ऑलरेडी कर भी रहे हैं, या तो डायरेक्टली अगर नहीं कर रहे होते तो काफ़ी ऐसे फंड्स होते हैं ना, जो कुछ बाहर से पैसा आता है, बैक एंड पे कुछ लोकल भी होते हैं, वो भी पैसे But डालते हैं. is it from the point of view of the investor, are the startups as that profitable? Can they give a return? बिकॉज देखिए अगर सेठ का माइंडसेट देखिए, वो कहता है भाई 10 रुपये लगा रहा हूँ, 20 रुपया चाहिए, 15 रुपया चाहिए, 12 रुपया चाहिए, वो इसमें इंश्योर तो ये तो कहते हैं सर 5 साल बाद अभी तो बर्न होगा, बर्न के बाद 6 साल के बाद हम शायद कुछ हो जाए, ब्रेक इवन पे आ गए, फिर 10 साल बाद हम 10x हो जाएंगे. तो वो ये इज इट अ बिलीवेबल स्टोरी फॉर देम? फॉर द मोस्ट पार्ट नो, इट्स टफ. वो कहते हैं 22% मुझे बैंक में रखने से मिल जाते हैं सालाना, मैं क्यों रिस्क लूँ, ठीक है, एंड दैट मेक्स सेंस, राइट? एनी कॉमन पर्सन वुड से दैट. बट एट द सेम टाइम देयर आर पीपल दैट वांट टू टेक द रिस्क. व्हाई? बिकॉज दे सी सर्टन स्टोरीज, राइट? उन्हें करीम का एग्जिट देखा. करीम वॉज नॉट अ पाकिस्तानी कंपनी, बट पाकिस्तानी फाउंडर्स तो हैं उसमें, उन्होंने वो देखा, उनको दैट्स कूल. फिर मसला क्या हो गया? एयरलिफ्ट, दे द हाईएस्ट फंडिंग उन्होंने रेज की और उसके बाद जी ये हो गया. बट एट द सेम टाइम अहमद अयूब, वन ऑफ द फाउंडर्स, वेरी डियर फ्रेंड, we're again in the same co-working space, and जब हम उनसे बात कर रहे होते हैं ना, तो it was a very solid kind of a way forward for it. Things just didn't work out or pan out in the right way. So people that understand कि भाई रिस्क वहाँ पे भी है, रिस्क इधर भी है. रिस्क तो है लेकिन रिस्क कहाँ है? तो ये this is a line that I always use. Everybody has their own share of risk and their own share of risk as well, right? So the reason for that is कि you need to understand कि किसी न किसी तो रिस्क लेना पड़ेगा ना. एंड अब 6 years later जब उसका प्रोजेक्ट का आखिरी साल था तो आई वाज रनिंग इट इज वेल, राइट? बट देयर इज़ नो वन साइज फिट्स ऑल. इंक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर्स, दे वर्क अमेजिंगली वेल फॉर सर्टन मार्केट्स, बट एक स्टार्टअप है जो इस लेवल पे, एक स्टार्टअप है जो इस लेवल पे. ये वाला लेवल वाला बंदा कहता है कि यार मुझे सिर्फ कनेक्शन करवा दो किसी वीसी के साथ, मैं नहीं आगे तुम्हारी क्लास से अटेंड कर रही है. लेकिन इंक्यूबेटर बोलेगा यार 80% अटेंडेंस नहीं की तो यू वोंट ग्रेजुएट. यार ये क्या है? इस लेवल वाला स्टार्टअप आएगा, कहेगा यार कूल सी ऑफिस है, मुझे जगह मिल रही है मुफ्त की, आके बैठ जाओ. ओके, तो उसको वो फ़ायदा भी हो रहा है, वो शायद अटेंड भी कर लेगा सब कुछ. मिडिल टीयर वाला कभी आएगा कभी नहीं आएगा, वट एवर द केसेस. हम लोगों के पास ना कोई कोहोर्ट है, देर इज़ नो स्टार्टिंग पॉइंट, देर इज़ नो एंडिंग पॉइंट, देर इज़ नो रिक्वायरमेंट 80% आओगे तो ये कुछ होगा. वे नॉट अ स्कूल, राइट? हम कहते हैं इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर स्टार्टअप एंड यू नीड हेल्प, हमारी जान आप अजाब कर दें, हम आपको हेल्प करके देंगे. एंड देयर आर पीपल
मुझे हर दूसरे दिन एक स्टार्टअप है हमारा, रात को 11-12 बजे ना रैंडमली उसकी कोई रिपोर्ट आ रही होती है। मैंने तो नहीं मांगा उससे, ठीक है, क्यों, लेकिन पिछले 3 महीनों से मैं उसके पीछे पड़ा हुआ होता हूँ कि यार क्या हुआ, फिर मतलब अगस्त में इतना हो जाएगा नंबर, क्या हाँ हिट किया नंबर। अब मैं उसका बॉस नहीं हूँ, आई हैव नो शेयर इन द कंपनी इज़ वेल, लेकिन वी शो देम दैट वी केयर, दैट देयर विजन इज़ आवर विजन। हम लोग इतना हैविली उनके साथ होते हैं, एंड व्हेन यू डू इट इन NIC और एनी प्लेस अदर, yes there is a small part of that happening, but ये working with big cohorts, ढेर सारे numbers हैं, नंबर को चेक मार्क आना ज़रूरी है, because that's how it's formed, it's not their fault. मेरे पास कोई ऐसी ज़बरदस्ती नहीं है, मुझे 5 स्टार्टअप के साथ काम करना है ना पूरा साल, मैं 5 स्टार्टअप के साथ काम करूँगा, बट आई मेक श्योर कि जी उसके घरेलू मसले, मुझे किसी स्टार्टअप ने बताया कि जी आप इतना खातून थी तो इसलिए, और मैं थोड़ा तल्ख ज़्यादा हो जाता हूँ एट टाइम्स बिकॉज आई एम टू पैशनेट। तो उन्होंने बोला फैज़ान आपने ऐसे ऐसे बोला, मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन आपको बताती हूँ मैं, आई हैव सोल्ड माई कार एक्चुअली एंड दैट वाज द ओनली थिंग दैट आई हैव ओन्ड एवर फॉर दिस स्टार्टअप एंड यू स्टिल थिंक आई एम नॉट सीरियस, एंड आई लाइक ओ शिट। तो इस किस्म के लोग होते हैं जिनको पता है कि जी हमें करना है बात है कुछ। कि द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ नोइंग दैट स्टोरी, शायद बाकी जगहों पे कोई शायद ये पता भी नहीं था, तो नाउ यू लुक एट देम इन अ डिफरेंट वे, देन यू आल्सो हेल्प देम इन अ डिफरेंट वे कि यार मे बी इसकी सेंसिटिविटी लेवल यहाँ पे है, मे बी दे आर लुकिंग फॉर दिस, तो साइकोलॉजिकली भी आप उनको समझना शुरू होते हैं। वेरी ट्रू। You need that context sometimes. और मेरे पास कोई KPIs नहीं है ना, यानी KPIs हैं बट उस किस्म वाली KPIs नहीं है कि जी इतने नंबर के स्टार्टअप्स निकालना ज़रूरी हैं, ये सब कुछ करना ज़रूरी है। हम कहते हैं कि यार अभी फनल पहले था एक सिटी में हो रहा था, हमने कहा यार ठीक है दूसरी सिटी से अब मेरे पास पेशावर, फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद से ना मंथली कॉल्स आती हैं, तो एवरी वीक ऐसे है ना कि 4 to 7 कॉल्स हमारी 1-on-1 हो रही होती है अक्रॉस पाकिस्तान। ओके यार तो वहाँ पे भी चलते हैं, लॉन्च कर दिया। फिर किसी ने कहा लाहौर में आ रहे हैं आप लोग, लाहौर में भी कर लेते हैं। ओके अब क्या हो रहा है, हम चैप्टर्स बना रहे हैं हर सिटी में। हमने कहा हमने अनाउंस किया सेटिंग अप चैप्टर्स, we're not going to pay you anything but you want to be a chapter director to help your community, apply for it। एप्लीकेशंस आ गई, लिस्ट में पाकिस्तान की कुछ सिटीज़ थी, किसी ने इनबॉक्स किया यार कतर में क्या कर रहे हैं आप लोग, मैं कहा कुछ नहीं कर रहे, नहीं सो आई एम शिफ्टिंग टू कतर एंड दिस इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल, आई विल नॉट नेम हिम बट ही इज़ लाइक वेरी, आई वुड लुक अप टू द गाय कि यार इससे मैं कुछ सीख लूँ। मैं शिफ्ट कर रहा हूँ वहाँ पे कतर, आई एम गोइंग टू लॉन्च। ओके कतर में चैप्टर खुल रहा है, ग्रेट। लागोस नाइजीरिया से एन एंटरप्रेन्योर गेट्स इन टच, आई लव दिस। आप लोग वीडियोज़ इन ऑल ऑफ दैट, उर्दू में नहीं बोल रहा था वो ऑब्वियस बात है, लेकिन आप लोग जो वीडियोज़ वगैरह जो हैं ये इस किस्म के इवेंट्स हमारे पास नहीं हो रहे हैं, आई वुड लव टू डू दिस ओवर हियर। ओके दुबई से किसी और ने बोला कि यार हमारा पाकिस्तानी यहाँ पे काफ़ी एक ग्रुप बना हुआ है, वी वांट टू रन दैट ओवर देयर। दीज आर ऑल पीपल दैट जस्ट बिलीव इन द विजन, बिकॉज व्हेन वी पुट इट आउट देयर ना ओपनली, इसी तरीके से बात करते हुए, तो जिसको वो कनेक्ट कर जाते हैं, वो फीलिंग उसको मिल जाती है, दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। ऑल्सो हम बहुत दफ़ा ना हम वो ईगो कह लें या कोई एप्रीहेंशन ज़रूर होती है। जैसे हमने भी व्हेन वी वांटेड टू इनवाइट यू, तो वो किसी ने बोला यार वो भी तो पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो मैंने कहा तो इससे अच्छी बात क्या होगी, मैंने कहा मिलेंगे उनसे भी सीखेंगे कुछ यार, उनको कुछ आता है तो हमें सीखा। मतलब वही मैंने कहा भाई यही तो बात है कि आप इवन विद बिजनेस पीपल लाइक डिज़ाइनर्स, आर्किटेक्ट्स, मतलब यू नो आई कीप मीटिंग देम एंड भाई आप क्या करो, मुझे यार तुम सब बता दे, तो मैंने कहा तो क्या फ़र्क पड़ता है यार, मैंने कहा यार इतने में डिज़ाइन कर रहा हूँ, तुम लोग कितने में कर रहे हो, तो वो भी फिर खुल जाता। तो आप अगर वाकई, मैंने कहा और मैंने कहा क्या कर लेगा वो मेरा चीज़ चोरी करके, मैं तो आपने प्रोजेक्ट बता दिया, अगर वो वहाँ पहुँच जाए, मैंने कहा भाई उसकी किस्मत में होगा उसको मिल जाएगा यार, किसी को मिलेगा। मैंने कहा मैं तो अपनी मैं तो वो हम लोग वो कहीं ना कहीं यहाँ रुक जाते हैं। तो आई थिंक द फैक्ट दैट पीपल आर फ्लॉकिंग टूवर्ड्स यू इज़ के you've opened that you know the floodgates. Because so if there's an author called Simon Sinek, I love the guy. मेरी ज़िंदगी उससे बदल दी थी उसके माइंडसेट की वजह से, the way he talks about stuff, right? So his start with why, that. So the people that understand our why and why we're doing it, it's not for the money. There's a whole spiel around it, but that's not the main thing. They'll work with us. They'll want to be a part of this. ठीक है, these are the people that will put up posts around it after every event. These are the people that actually want to become a member and they'll do a post. I am now a gold member at Startup Syndicate, and because it's proud, it's a proud feeling for them. These guys add value. हम लोग ये भी नहीं कहते कि आप गोल्ड मेंबर हैं सिर्फ आपको मिलेगा, नहीं, ये तो कहते हैं वो तो ठीक है, कोई और स्टार्टअप इसको हेल्प चाहिए, आई वुड लव टू हेल्प आउट। लाहौर का इवेंट लास्ट टाइम मैं गया था ना, अभी आपको इस्लामाबाद की कहानी बताई,
तो वी हैड अनदर ट्रांसफर इन देयर अकाउंट. व्हाई? दे फाउंड आउट कि जी हम लोग स्नैक्स से कितने पैसे भरें. कह रहे स्नैक्स हमारी तरफ से. ओके, अनदर स्टार्टअप फाउंड आउट, कह रहे आप आ रहे हैं यहाँ पे. हाँ, मैं कहाँ रह रहे हैं? मैं कहा अल्बुको होटल. नो, वी हैव अ गेस्ट हाउस, वहाँ पे आपके लिए रूम है, आप वहाँ पे आके रह लें. मैं ओके. सो दिस इज द काइंड ऑफ कम्युनिटी वी क्रिएटिंग. And when you create a positive community, there's so much negativity in society in general. It's, you know, there's just people sucking energy away from you. You have no idea. If you have positive people who are willing to help you, who are willing to contribute, give you feedback, willing to encourage you, then I think that people just want to participate in that. Have you seen that video? वो जो कोई गांव में कोई बच्चे हैं and they're doing the वो आयरन मैन वाला वो एक सीक्वेंस नहीं है जिसमें वो मतलब लाइक वो लाइक पूरी एनिमेशन बनाई है उसने और मेरे ख्याल में दीवारें पे प्लास्टर भी नहीं है जिस घर में वो हैं एंड वो क्या क्रेजी वो पूरा का पूरा एनिमेशन उसके हाथ के साथ घूम रही है एंड दे फाइटिंग ईच अदर विद दिस. Wow. तो वही है कि आपको मगर ऑब्वियसली मैं अब कह रहा इन बच्चों के लिए भी कोई प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए. कहाँ जाएं, किससे मिलें? इफ दे लुक एट थिंग्स कि जहाँ या कोई लोग उनको मिल जाएं जहाँ दे कैन गेट एन एम्प्लॉयमेंट और दे कैन बी पार्ट ऑफ द इवन जैसे हम को फाउंडर ढूंढना कितना बड़ा प्रॉब्लम है. But उससे मुझे याद है also, हाँ प्लीज I think that उसको थोड़ा सा de-glamorize करने की भी ज़रूरत है. Yes. I think that everybody wants to be a founder. Everybody wants to have it on their Instagram thing. Founder of this, starter of this, blah blah blah. तो मतलब इसमें बहुत grit भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए, बहुत. Thick skin. I mean, it's not all bean bags. It's not all, you know, get-togethers and carnivals and festivals. मतलब it's late nights, early mornings. So it's not a 9 to 5 anymore, but it's a 9 to 5, 5 to 9, 9 to 5, 5 to 9. मैं यही बोल रहा था. मैंने कहा कुछ लोग कहते हैं कि हम अपनी नौकरी 9 to 5 नहीं करना, मैं छोड़ के ना आराम से अपना बिजनेस करूंगा. मैंने कहा दैट मीन्स अब 9 to 5 नहीं, अब 9 to सुबह के 5 है अब. और उसके बाद भी जब आप सो रहे हैं ना तो सोने से ब्रश करते हुए आपके दिमाग में चल रहा है कि यार वो अच्छा इसको ऐसे करना था, उसकी पेमेंट करनी थी, अरे वो तो रह गया, बिल कब पे कर, सारा प्रॉब्लम्स आपके दिमाग में चल रहे हैं. कुछ खुद इट्स अ 25 आवर जॉब है फिर आपके दिन की. Absolutely. So I was having a call with somebody 2-3 days ago. They were telling us कि एक प्रोडक्ट है, आपके ट्रायल वगैरह हो रहा है तो ये प्रोडक्ट के थ्रू आपको ना डिस्काउंट्स मिल जाएंगे, डाटा ये कर दें डाटा. आप अपने एडमिन वाले को बोल दीजिएगा कि वो ये हैंडल कर लेगा प्रोडक्ट. Admin. एक मिनट होल्ड करो. हेलो मैं ही हाँ. हूँ. पर मैंने कहा एडमिन वाला कौन? कहती क्या मतलब फैजान? मैंने कहा यार हम लोग की टीम में 2 लोग हैं, एक MTO है हमारे साथ. नहीं तो आप ये फिर इवेंट्स वगैरह कराते रहते हैं, फिर आपके वर्कशॉप्स भी होते हैं, फिर आपका ये भी होता है, फिर आप कैसे मैनेज करते हैं? मैंने कहा हो जाता है. तो आपका अकाउंट बनेगा? मैं कहा जी. ओके, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा. एंड देन बिकॉज दे कुडंट अंडरस्टैंड कि भाई हाउ आर यू डूइंग दिस. यू डोंट हैव एन एडमिन पर्सन because the whole presence and all feels nice and big and everything. तो we use that as an example then कि भाई if we are able to do this, हमारे कोई पर नहीं लगे हुए, कुछ नहीं होगा, you can also do it. And now बहाने और ख़त्म है लोगों के पास. ChatGPT will do everything for you. ठीक है, you can find videos for almost Are you a everything. fan of ChatGPT? Yes and no. थोड़ा double-edged sword है. Yeah, so again, I don't think we have to be scared of it, nor do we have to think, oh, it's going to take over the world and our jobs and everything. It's a tool. It's a knife. You can stab a person with it and you can cut a cake with it. और you can stab yourself with it और cut a cake. Yeah. कि मतलब आप अगर वो कॉपी पेस्ट पे चल रहे हैं तो फिर आप कुछ नहीं करते. एंड मुझे और भी जितनी भी ऐप्स आई हैं यही सब लोग डर रहे थे. मैंने कहा भाई अगर आपको डिज़ाइन का कख नहीं पता तो आप करवा लो किसी से भी डिज़ाइन. अभी मैंने कहा एक तस्वीर खींच के, अब किसी हमने एक्सपेरिमेंट की तस्वीर खींची, उसने कहा वो ऐड में आ रहा है ऐसे जाता है और सब कुछ खूबसूरत हो जाता है. अब वो दीवार की एंगल को ना कोना रीड नहीं कर रहा. मैंने कहा अब ये सीधा कैसे करोगे? हाँ. मैंने कहा इसके लिए फोटोशॉप आनी चाहिए थोड़ी बहुत. ये बहुत अच्छा कर दिया इसने, मगर ये 4 चीज़ों की वजह से ये अगली कभी भी सही नहीं लगेगा. पता नहीं कहानी आपने सुनी हुई कि नहीं सुनी हुई है कि शिप थी वो ख़राब हो गई, उसके इंजन में मसला आया हुआ था, तो दे वेंट आउट देयर. एक बंदे को बुलाया कि बुढ़े किस्म का बंदा आता है वहाँ पे, वो घंटे तक यूँ देखता रहा, इंजन को देखता रहा, करता एंड में से एक हथौड़ा निकाला, इंजन में आया ठा, इंजन स्टार्टेड. उसने कहा इट्स अमेजिंग. उसका हाउ मच हुआ? वही ही सेड $1,000. कहते फॉर वन हैमर की हिट $1,000, आई नीड अ ब्रेकअप ऑफ इट, गिव मी अ बिल, इनवॉइस मी. तो इनवॉइस के ऊपर क्या लिखा हुआ है? उसके ऊपर $999 to know where to hit the hammer, $1 to actually hit the hammer, because these guys knew what to do and how to do it. So that experience counts. ChatGPT as well, there are AI prompt writing के अब certifications हैं. So I can write a prompt, he can write a prompt, you can write a prompt, results will vary.
So I think that's a requirement. Why? Because again, you need to use whatever tools you have in the best possible way to do it. So example, वो और बात है कि वो थोड़ी सी जैसे कभी कभार इवन सिंपलेस्ट रिप्लाई लिखने के मैं सोचता हूँ चलो चैट जीपीटी कर लेते हैं, तो मुझे होता है कि यार इतना इतना लेजी क्यों हो गया हूँ मैं, कि मैं ये सोच रहा हूँ कि द लिखूँ या अ लिखूँ, उसमें भी कहीं ना कहीं खुद ब खुद वो तो mind मजे block की है। बात ये है, मैं इस्लामाबाद से बैठा हुआ था अभी, तो somebody came to me and said कि we work on AI. मैंने कहा oh my god, another startup that Another just AI. wants to add something कि क्योंकि ये पिच का वो बन गया है ना, फैशन है आज, फैशनेबल क्या ये है, ओके हम ये करते हैं विथ AI. ओके हाउ, कुछ नहीं पता. ओके मैंने कहा ओके हाँ दिखाएं, आई इंट्रोड्यूस यू माई टीम. पाकिस्तानी कंपनी है, मैंने कभी ज़िंदगी में नाम नहीं सुना, मुझे पता भी नहीं है कि वो एग्जिस्ट भी करते थे. इंटरनेशनल क्लाइंटेल है, उनके ये 6 बंदे बैठे हुए हैं. ये फैज़ान है, ये इतने सालों से ये करते हैं ये, बिकॉज उनको बड़ा लग रहा था फैज़ान है, पता नहीं. मैंने कहा ओके आई डोंट नो हाउ ही न्यू मी, बताएं इसको कि हम लोग क्या करते हैं. वन ऑफ द गाइज वाज लाइक आई एम द मेन आर्किटेक्ट होता सिस्टम का. ही टोल्ड मी दे वर गोइंग थ्रू 2.1 billion lines of data via their AI mechanism to detect cancer cells for lung cancer, Oh my god. and they have improved the predictability up to 90 some percent, and they have all that records और data सारा पड़ा हुआ है. अच्छा मैं 2 मिनट के स्टन हो गया. कहा कितनी बड़ी टीम है, कहते हैं 6 लोग हैं. मैं कहा तो आप लोग किसी को बताते क्यों नहीं इसके बारे में, काम करना है हमने, बताना नहीं है. सो पहले जो मेरे था मैं क्या दही बनाने वाला है, दिमाग की दही बनाएगा ये बंदा, एंड आई वाज लाइक नो यार टेल मी मोर. ये छोड़ें आपको एक और दिखाता हूँ. एक और प्रोडक्ट की टीम उसके ऊपर 5 बंदों की बैठी हुई थी, उसके बाद लेके गया. सो दे हैड अ होल सिस्टम. अच्छा वो महंगा वाला सिस्टम है, वो नहीं होता वेबसाइट पे हम जाते हैं काफ़ी जगह पे हम कहते हैं कि कितनी सब्सक्रिप्शन पैकेजेस हैं, लिखी होती है प्राइसेस लिखी हुई आती हैं. महंगे वाले में जब आप जाते हैं ना प्राइस नहीं लिखी हुई होती है, यहाँ पे लिखा होता है गेट अ कोट. हाँ वो आप क्लिक करें, रिप्रेजेंटेटिव वो कॉल करेगा या ईमेल आएगी, उसके थ्रू आपको बताएगा. वो वाली प्रोडक्ट थी गेट अ कोट वाली. ग्रांट राइटिंग अगर आपको करनी है, आपको बड़े प्रोजेक्ट के लिए पिच करना है, तो द होल सिस्टम वाज अवेयर ऑफ पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ आर्टिकल्स. दे वाज रेडी ऑन इट, इट न्यू दैट डेटा, ओनली दैट डेटा, नथिंग एल्स. और ना आपको ग्रांट राइटिंग करनी है ना, आप 3 क्लिक्स के अंदर करेंगे, आपको परफेक्ट वो बना के देगा. कहते हैं हमारे इसकी वजह से वी हैव नॉर्थ अमेरिकन मार्केट के अंदर सब कुछ है, इसकी वजह से आपके इतने $1000 बच जाते हैं, एंड हम लोग बस ये बनाते हैं. मैं कहा ये आपने कब से बनाया हुआ है, 1.5 साल हो गया है, वे रेजिंग पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स. मैं कहा व्हाई डोंट यू टेल पीपल. कहते नहीं हमें शौक नहीं है, हमें दिल नहीं करता. तो ये भी लोग हैं, मज़ेदार बात. बट हमारा काम फिर यही पे होता है कि मैं उनको फिर खींच के लेके आता हूँ. इवेंट का टाइम है, खींच के उनको लेके आते हैं, कहते हैं ये करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ये करते हैं. एंड दे हाँ हम लोग ये करते हैं, एंड देन बिकॉज दे नॉट यूज्ड टू दैट. मगर कितनी मज़े की बात ये है कि ये दूसरी साइड ऑफ द स्टार्टअप कि भाई आपको नहीं ऑफिस खोलना, आपको नहीं किसी को दिखाने की ज़रूरत, आपको काम करने की ज़रूरत है यार, और उसमें पैसे तो उसमें बनने, ये तो सब दिखावा. अब मुझे याद मैं तो आई वेंट विद समबडी टू अ कंपनी इसी तरह, तो वो बाहर जाके अच्छा वहाँ कोई कॉफ़ी पी रहा है, कोई ये जाओ सर ये काम कब करते हैं. मैंने कहा भाई यही काम है इनका, तुम टेंशन नहीं लो, तुम चलो मेरे साथ. तो मैं वो ये कि वो जो एक आइडिया जो है, जो फैंटेसी है, वो फैंटेसी होनी चाहिए वैसे बनाने की, या यू नो गेटिंग टू लर्न समथिंग, वो बजाय कि सिर्फ के एक अच्छा सा ऑफिस हो, एक अच्छा सा लोग हो मेरे अराउंड, में CFO हायर कर लिया, CTO हायर कर लिया. भाई इससे क्या होता है, आप खुद वही बात है, अभी एडमिन भी आप खुद हो सकते हैं, सब कुछ हो जाए. still do good So job. when I did the first delivery company 2014, this was before Bike existed, we were doing Foreign. on-demand delivery, foreign, right? When we were doing that, उस ज़माने में 4th फ्लोर पे ऑफिस होता था, एंड क्या नाम है उसकी एलिवेटर नहीं चलती थी बिल्डिंग की. तो मैंने जैसे जैसे उनको बोला था, मैंने कहा यार मैं भर दूंगा पैसे, एलिवेटर तो चलाओ. अच्छा अब लोगों ने यूज़ करना शुरू कर दी. मैं कहा नहीं, मैं अपने फ्लोर पे लॉक करवाऊंगा क्योंकि मैं पैसे भरता हूँ. ओके लोग फिर भी तेज़, एक फ्लोर ऊपर जाना है तब भी एलिवेटर में आके सीढ़ियों से चले जाए, एक दिन नीचे जाना है तब भी चले जाए. मैं कहा कोई बात नहीं चलो. अब कोई आता था पान की पिचकारी मार के गया हुआ है उसके अंदर, कोई कचरा फेंक के गया हुआ है उसके अंदर, राइट. आई स्टिल रिमेंबर, इफ समबडी वाज कमिंग टू द ऑफिस, आई यूज्ड टू गो एंड चेक द एलिवेटर. गंदी होती थी, आई यूज्ड टू वॉश इट माई सेल्फ, क्लीन इट. तो वो एलिवेटर ऊपर नीचे जा रही है, उसके अंदर मैं खड़ा हूँ कपड़ा और एक जग लेके पानी का. मैं लगा लोग आ रहे हाँ जी ठीक ठाक हैं, आप कैसे हैं, ठीक ठाक हैं. आई नेवर यूज्ड टू फील एनीथिंग रॉन्ग विद दैट. वी हैव डन डिलीवरीज एट होम. आई एक्चुअली लव डूइंग दैट. आई स्टिल रिमेंबर फॉरेन में वी हैड रेज फंडिंग आफ्टर दैट एंड एवरीथिंग. फ्रोज़न थीम का केक था, गर्मी का मौसम था,
एंड इट मेल्टेड. सो एक तो ये आयरनी है, फ्रोज़न का केक था जो मेल्ट हो गया. खातून ने एक चीज़ नहीं बोली, उन्हें बोला यू हैव जस्ट रूइंड माई डॉटर्स बर्थडे. Oh no. बस करके उन्होंने लौटा दिया. कोई चीखी चिल्लाई नहीं, कोई कॉल नहीं की, कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं, कुछ नहीं किया. विद इन 30 मिनट्स हमारे मेन हेड ऑफिस पे राइटर वापस आते हैं, उसने दिया. अरे सर ये हुआ है. मैं बाहर देख रहा हूँ, मेरी टीम मेरी खड़ी बातें आते कर रही है. मैं गया, लेकिन क्या हुआ है? तो सर ये हो गया. ओके. तो वी हैड समथिंग कॉल खपती सर्विस एट दैट टाइम. वी हैड फॉर्म्ड दैट एक्रोनिम. कूल बनेंगे ना, knowledgeable, honest, adaptive, balanced, timely, interactive, no matter what. If we mess up, हम आपको आके बताएंगे we messed up और हम ऐसे ठीक कर रहे हैं इसको. Because of that, the team actually took petty cash out. गए हैं तारिक रोड से जाके, वो हमारे ऑफिस करीब था वहाँ पे, वहाँ से जाके उन्होंने सारे फ्रोजन थीम की डॉल्स खरीदी हैं, बैकपैक खरीदे हैं, स्टोरी बुक्स खरीदी हैं, एक और यहाँ केप हैप्पी बर्थडे उस पर लिखवाया है. एंड विद इन लाइक 45 मिनट्स ऑफ एन आवर बैक एट दिस डोर स्टेप सॉरी के साथ बोलने दिया है. तब सोशल मीडिया की पोस्ट आई है फ्रॉम दैट लेडी. उससे पहले उन्होंने शिकायत नहीं की. हमें कॉलें आई हैं, लोग कहते हैं कि आप किस मुल्क की कंपनी हैं आप लोग. मैं कहा जी मतलब पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता. हाँ ये किस मुल्क है. मैंने कहा यार क्यों, यानी आई डोंट अंडरस्टैंड दैट. संडेज़ को जाके मैंने डिलीवरियाँ खुद नहीं की मैंने, क्योंकि समबडी सेड कि वो मेरी फ़्लाइट है, मैं तो मिस हो जाएगी. मैंने जाके डोर स्टेप पे, मैं रहता हूँ किमाड़ी के पास बिल्कुल कॉर्नर में. आई वेंट ऑल द वे अक्रॉस 13D2 गुलशन इकबाल. आई स्टिल रिमेंबर. संडे के दिन पे कॉल करके मैं जाके डिलीवरी की है. वो भी बंदा भी देख रहा है मुझे, कह रहे हैं आप यूँ करके मुझे ऊपर देख रहे हैं. मैं कहा जी नहीं नथिंग, थैंक यू जी, थैंक यू करके उसने कर दिया. फिर मैंने जिस नंबर से कॉल की थी, मैंने कॉल वो मैसेज करते हैं उसके ऊपर. सो यू डिडंट सीम लाइक अ नॉर्मल राइडर. मैं कहा नंबर 1 वी डोंट कॉल देम राइडर्स. हम लोग डिलीवरी पार्टनर बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, बिकॉज जी वो राइडर हमें लगता है कि बड़ा उसका बेइज्जती वाला नाम ने दिया हुआ है. एंड आई एम दी ओनर. दैट गाय स्टिल अ फ्रेंड. बिकॉज उसने कहा कि यार ये क्या, मैंने कैसे, कोई ऐसे करता ही नहीं है. मुझे उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं लगती है, कोई बड़ी चीज़ भी नहीं लगती है. आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट वे टू डू अ फ्री सर्वे. यू शुड डू इट. एक टाइम आता है जब बंदा व्हेन यू डाउन, या आप दूसरे को आगे चढ़ते हुए देख रहे होते हैं, आप कहते हैं यार मैं भी इतनी मेहनत करता हूँ, और जनरली हम दूसरे कहते हैं ये बेवकूफ़, इसको क्या आता है, इसके तुक्का लग गया, तो ये जो बिटरनेस होती है ऐसा. एंड इट्स नॉट लाइक कि कोई आपकी मिलिशियस फीलिंग होती है, जस्ट कि एक नेचुरल होती है कि यार अच्छा, फिर आपने आपको जस्टिफिकेशन दे देनी, नहीं तो क्या हो गया यार, दिलासा देने के लिए अपने आप को उसकी भी अच्छाइयाँ कर रहे होते हैं. तो डू यू गो थ्रू दैट डायलेमा एंड हाउ डू यू डील विद इट? I used to before. I think it's lessened over the years. Okay. I think I'm human. Yes. अगर कोई आएगा, कोई आके बोलेगा कि यार I am my own biggest critic, तो I try to reduce negative self talk. मैं कोशिश करता हूँ कम से कम करूँ, लेकिन I do not like me. Trust me. ठीक है. एक so why? Because I think that keeps on motivating me to do something better. The way I will deal with my team. ठीक है. अब उसके बाद then I'll go through the whole day in my head. I should have said it in a better way. टोनैलिटी मेरी गलत थी, ये गलत था, या कस्टमर के साथ या स्टार्टअप के साथ मैंने बदतमीज़ी से बात कर ली, ऐसे नहीं करना चाहिए था, बिकॉज मेरे जहन में तो वो नहीं था, उसको कैसा लगा होगा. तो आई हैव दैट फर्म बिलीफ. वाई? 2002 when I started my first company, a year into it, 6,500 रुपये का रेंट था उस ज़माने में. DHA में 1000 स्क्वायर फुट का ऑफिस. ओके. पैसे नहीं थे 6,500 रुपये भरने के. 3 months नॉन स्टॉप ये हो रहा था कि वो यावर साहब थे, आई स्टिल रिमेंबर द लैंडलॉर्ड्स नेम, लवली जेंटलमैन, बेचारे कुछ नहीं बोलते थे. और 2 महीने हो गए, डिले हो रहा है रेंट, पैसे नहीं बन रहे थे. पहली दफ़ा ज़िंदगी में काम किया था, आती नहीं, तमीज़ ही नहीं थी कैसे करना है. अब मेरी हालत ख़राब. मुझे आई हैव नेवर बीन थ्रू दैट पोजीशन. मैं तो नमाजी परहेजगार नहीं हूँ. उस दिन मैंने ज़ोहर की नमाज़ ज़रूर पढ़ी है. एंड आई क्राइड. मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसके साथ शुरू किया था हमने, बड़ी मुश्किलों से ना पार्टीशंस बनाए थे. तो मैं पार्टीशन के उस तरफ जाके रो रहा हूँ और नमाज़ पढ़ रहा हूँ, और मैं दुआ कर रहा हूँ अल्लाह में इज़्ज़त बचा लें, अल्लाह में इज़्ज़त बचा लें. 6,500 रुपये हैं, ये है लड़ा. अच्छा. आई वाइप्ड माई टीयर्स, और मैं जानमाज़ उठा के मैं बाहर निकलता हूँ तो घंटी बजती है. हमारा प्यून था एक, वो आता है, कहते फ़लाना बंदा है. अरे कौन बंदा है पता नहीं. समबडी वॉक्स अप द स्टेज गोज़ फैज़ान. मैं कहती, कहते हैं हम आपसे सर्विस लेते रहते हैं ना, वेबसाइट की होस्टिंग सर्विस हम देते थे जहाँ पे आप फाइलें अपलोड वगैरह करते हैं. हाँ, तो वो लेते हैं ना, तो आपसे बात हुई थी, तो आज तक कभी मुलाकात नहीं. मैं कहा मैं एरिया में था, मैं आ गया,
आपने बताया था कितना था ये? 6,500 रुपये साल के, 6,500 रुपये होते थे। मैंने उस बंदे से पैसे नहीं लिए क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। और मैंने कहा 1 मिनट रुकते हैं। कहते हैं क्या हुआ? मैं कहा 1 सेकंड अगर आप बैठेंगे हाउस पे 1 मिनट। मैं गया ज़की, मेरा बेस्ट फ्रेंड था इसके पास, मैं गया, मैं कहा ज़की यार कस्टमर है पैसे ले लो। कहते भाई तू ले ले भाई। मैं कहा यार ले लो, समझो कि यार तुम्हारे नखरे नहीं ख़त्म होते, एक तो ये वो करके वो गाली देते हो। एंड आई सैट विद माय टेबल एंड आई क्राइड। क्योंकि उस टाइम पे यकीन करें जो डर लगा है ना मुझे, डर जिसे कहते हैं बाकायदा वाला, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हाउ दैट हैपन, व्हाट दैट हैपन। लेकिन मुझे पता था ओके फाइन, अगर यार वो हो गया है ना तो बाद में भी हो जाएगा। आई बीन थ्रू डिप्रेशन, आई हैव ऑलमोस्ट थॉट अबाउट एंडिंग थिंग्स एट टाइम्स। वी गॉन थ्रू ऑल ऑफ दैट। आई एम श्योर हाँ, कभी ना surviving. कभी किसी न किसी को ये सबको ही इस जा, तरह के- जान की धमकियाँ भी मिली हैं मुझे, अच्छा। तो वो भी मसला नहीं है। तो जान की धमकियाँ मिली हैं, इधर जाओगे तो टांगे तोड़ देंगे। किसी के एक दफ़ा कपकेक ख़राब हो गए थे डिलीवरी के अंदर, तो उनके हस्बैंड ने बहुत मुझे सुनाई थी और ने कहा था अब तो निकल के दिखाओ, देखो क्या होता है तुम्हारे साथ। वो भी सुने हमने। This psychological burden. I mean, you also, I think, dealing with so many people's livelihoods is also something that is weighs heavy on one's shoulders, I would imagine. How do you deal with that? So men by default have a challenge, I believe. So again, I don't mean to get into the gender battles at all, but I think men have a challenge. Why? Because मैं ऑफिस में बैठा हूँ, मेरे ऑफिस के मसले हैं, I can't take them home. Because वो अगर सारा लगेज लेके मैं घर जाता हूँ, वहाँ पे अपने बीवी बच्चों के ऊपर डालूंगा, तो they don't understand, even if they want to and they have the best intentions, but it is unfair of me to burden them with it, right? एक दूसरा बंदे हैं ना, I mean a man, बंदे नहीं रोते, बंदे को ये नहीं होता, you have to be strong all the time, right? आपस में हम बंदे जब बात करते हैं ना, हमारे अलग मसला होते हैं, हम वो नहीं होते, हम ख़वातीन वाला नहीं बिल्कुल करते। क्यों? दो आंसू अगर निकलते हैं ना, विमेन फ्लॉक टुगेदर। हम लोग जाएंगे, मैं इनको बोलूँगा यार मेरी हालत ख़राब है, मैं तो मरने वाला हूँ, ये चल छोड़ यार, चल तुझे सिगरेट पिलाता हूँ या चाय पीते हैं, चल मर्दान क्या रो रहा है हाँ। बच्चों क्या रो रहा है, ठीक है वो। एंड दैट इज़ आवर वे ऑफ मैन कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। हम लोग एक दूसरे की इतनी बजाएंगे ना, उसे बजाने के अंदर वो हमारा लव भी हो रहा होता है, वो अजीब किस्म की चीज़ है, बट स्टिल दैट लीव समथिंग अनसेड। सो व्हेन दैट हैपेंस मैन कंपार्टमेंटलाइज, एंड वो होता है कि यार ये है वर्क वाला डब्बा जो है ना, ये इसके अंदर है, ये हो गया, अब जी इधर जा रहे हैं तो इधर जी डिफरेंट डब्बा खुलेगा, अब ये फैमिली वाला है, ये घर वाला है, ये दोस्तों वाला है। आई एम एन इंट्रोवर्ट, आई हेट क्राउड्स, आई डू नॉट लाइक टॉकिंग टू पीपल। इफ़ यू गेव मी द ऑप्शन ऑफ बीइंग हियर वर्सेस सिटिंग एट होम ऑन माई बेड वॉचिंग नेटफ्लिक्स और प्राइम, आई वुड हैव नेवर कम। लोगों को बड़ा लगता है बड़ा कूल किस्म का काम है, लेकिन अगर मुझे कोई आके बता रहे हैं कि मेरी एक ही चीज़ थी जो मैंने बेच दी इस चीज़ के लिए और आप मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं, या आपको क्या पता कि जी मेरे साथ घर पे क्या होता है, या आपको क्या पता आपने तो इतने बदतमीज़ी से बोल दिया, मजाक उड़ा लिया मेरा, और जब मेरा मजाक उड़ाने का इंटेंशन नहीं होता, बट यू नो हाउ यू क्रैक अ जोक एंड यू आर इन द फ्लो, एंड देन लेटर ऑन मिली सेकेंड्स लेटर यू रियलाइज़ कि ओ शिट ये नहीं बोलना चाहिए था, बट बाय दैट टाइम हो चुका है। तो वो बंदा बाद में आके अगर आपको बोले ऐसे, तो वो चीज़ फिर आपको समझ में आना शुरू हो जाती है, एंड यू नीड टू फिगर आउट कि यार ये इसको इधर ही रखना है, डब्बा बंद करो, चलो अब गाड़ी में बैठो, अब घर जाओ, अब कहीं लाहौर में गए उधर डिफरेंट डब्बा खुलेगा। तो आई थिंक ये जो है वो जो एक्सपीरियंस वाली बात है कि वो एज के बाद, सो आई एम 43, आई टर्न 43 इन कपल मंथ्स, एंड आई थिंक दैट केम बिकॉज ऑफ इट, एंड इट्स नॉट कूल। There is an image of, you know, startup life being really easy, but you do need to have a hardcore foundation, whether it is spirituality or something else. So maybe you can respond to that. So I think it's different for everyone. For me it could be something कि यार मैं तो ये करता हूँ because I don't know, I'm crazy like that. This is all I know how to do. मुझे जॉब करने की तमीज़ है नहीं, एक दो दफ़ा ट्राई भी किया है and I think I messed it up royally. But एक होता है ना कि do something that you're passionate about. Yes and no. Why? Because if it's only passion, passion can wane out at times, or if it's only passion you don't have enough knowledge about it, passion सिर्फ खुद से कुछ नहीं करके देने वाला. So that discipline, the knowledge behind it, you have to do lots and lots of hard work
to actually get all of that done. So there are a bunch of puzzle pieces. It's never just one thing, right? मसले की बात ये है कि हम लोग देखते हैं, मैं किसी को देखूँगा, किसी एंटरप्रेन्योर को कहूँगा यार कितना कूल है, इसने ये किया, टेस्ला गाड़ी बनाते हैं, मुझे भी गाड़ी बनानी है. I don't know the first thing about doing that, right? So you need to back it up with something else, with experience, with a co-founder that knows the stuff, your knowledge. So it's a constant thing. So you need to make your comfort zone a no-fly zone, literally. I buy more books than I read, but then I have these sudden, बीच में कि उस दिन मैंने देखा, मैं क्या यार 190 पेजेस की बुक थी, ठीक है, not like a light read either. Took me 4 hours, literally 4 hours, and वो I went through it, किया, मैंने कहा यार okay, I think I skipped it. The next day I went through the last 100 pages again, and then I was like, oh crap, यार ये मसला तो हमें ऐसे आ रहा था. Did that, and I keep doing this off and on. I replaced my Spotify list at times with what? There are a couple of apps out there, Headway के नाम से है, Blinkist के नाम से audio books होती हैं. So it takes almost 20-22 minutes for me to get to work. I put that on instead. And I see यार अगर ये अच्छी लग रही है ना 20 minutes के अंदर, I'll go and buy that book. That has to be done. Challenge is, it's not about looking cool, it's not about coming with a great idea, it has more to do with execution and the person that is executing it. That is the most important thing. Investors invest in the person. Investors do not invest just in the idea. If it's a cool idea but फैज़ान को उसके बारे में कख नहीं पता, तो क्या कहे यार साइड पे हो, किसी और को करने दो. तो I think that needs to be told to people. It's not going to be easy, ठीक है? It's going to be very very tough, and if I had hair I would be pulling them out. मगर आई एम श्योर यही बात है कि हम बाहर से बैठ के बड़ी जल्दी जज कर लेते हैं, यार ये तो देखो इतने साल से ब्रेक इवन भी नहीं किया, ये ऐसी है, मगर अंदर क्या चल रहा है बाकी. और हर कंपनी की कोई ना कोई ऐसी स्टोरी होगी, वो मेहनत होगी, वो फाके भी किए होंगे, घर वाले को भी फ्रस्ट्रेट किया होगा. सो आई थिंक समटाइम्स टू क्विक टू जज. वी नीड टू सी कि क्या बैटल है, क्या. अब वो जैसे जब ये बंद होती है कंपनी तो लोग बड़ा कहीं ना अंदर से वो भी आता है, ये देखो क्या निकले थे, देखो बंद हो गया, स्टार्टअप बंद हो गया. Everybody is waiting for you to fail. हाँ एग्जैक्टली. तो हाँ मतलब वो Constant. और हो गया तो सबसे ज़्यादा शेयर वो कर रहे होंगे को, ये देखो जब ऐसे निकले थे, हर किसी के बस की बात नहीं. मैंने कहा तुम खुद क्या कर रहे हो पहले ये तो बता दो. तो सारी दुनिया में तुमने कमेंट कर दिया, खुद तुम्हारा वही अब्बा का बिजनेस है, गले पे बैठे हो, कुछ करो. या तो वो बेचारे निकले करने के लिए फेल हो गए, कुछ और करेंगे जाके. But startup के लिए what is the happy ending? Is it acquisition? Is it what is the ideal exit plan? So there are two ways that a startup exits, right? IPO होता है कि आपने नहीं पब्लिक लिस्टिंग करवा दी, जो कि पाकिस्तान में अभी तक शायद एक कंपनी BlueX ने किया था. आई एम नॉट श्योर हाउ दैट वेंट. नोबडी एल्स हैज डन इट. दूसरा होता है एक्विजिशन, कि जी कोई बड़ी कंपनी आपको आके ख़रीद लेगी. दैट इज़ द बिग थिंग. व्हाई? It may not be the plan of the founders themselves, but they have to exit to please the investors, because investor ने पैसे इस चीज़ के लिए दिए हैं आपको. सीधी बात है. वो अपने 10x 20x चाहिए उसको, बिल्कुल. तो कहता है कि हाँ बेचो. तो होगा कि अगर नहीं बेचनी है अपनी कंपनी, मुझे नहीं एग्जिट करना, मे बी आई स्टिक थ्रू इट एज अ फाउंडर. हम लोग टिके रहेंगे वहाँ पे, लेकिन फॉर दिस फाउंडर, फॉर द इन्वेस्टर, आई डू दी एग्जिट. हमें भी थोड़े पैसे मिल जाएंगे, उसको भी पैसे मिल जाएंगे, न्यू ओनरशिप टेक्स ओवर, गेम गोज ऑन. And that is the mindset that, again, Simon Sinek, one of his amazing books is The Infinite Game. ये हम लोगों को समझा रहे होते हैं. So finite game is like football, cricket, rules हैं, certain set of players हैं, time है, आपको पता है end of it, score आपका जिसका ज़्यादा बढ़ गया, they win the game, game ends. That is not how a company can operate. The game never ends. So in an infinite game what happens is कि आप कहते हैं कि यार ये सेट ऑफ रूल्स तो हैं, सब कुछ है, बट द गोल इज़ सो बिग. इट्स लाइक आई वांट टू एंड वर्ल्ड हंगर. ख़त्म. वो गोल आप अपनी ज़िंदगी भर कर लेंगे, लेकिन यू वोंट बी एबल टू अचीव इट, बट दैट्स योर नॉर्थ स्टार. सो द गोल इज, हम इसको कहते हैं, यू बिग हैरी ऑडिशियस गोल. ठीक है ना? वो इतना बड़ा होता है कि आप नॉन स्टॉप उसके पीछे लगे रहते हैं, एंड द गेम शुड नेवर एंड. दैट्स द होल आइडिया बिहाइंड इट, बिकॉज देन द कंपनी इज़ देयर टू मेक मीनिंग. तो हम लोग ये सब लोग को बोल रहे होते हैं, यू नीड टू फाइंड वाई यू आर डूइंग दिस, एंड वाई, अगेन साइमन सेनिक ही वाला, व्हाट्स द मीनिंग बिहाइंड इट. वाई एम आई डूइंग दिस पॉडकास्ट ओवर हियर, वाई आर यू डूइंग इट, वाई शुडंट यू बी डूइंग व्हाट आई एम डूइंग, एंड वाइस वर्सा. कोई वजह होनी चाहिए ना.
अब ये लोगों को बड़ी लगती है कि एक्सिस्टेंशियल किस्म की बातें हो रही हैं बड़ी, और वो सब कुछ हो रहा है कुछ. अच्छा, तो क्वेश्चंस तो बहुत सारे थे, बट ऑब्वियसली यू हैव वर्क टू डू. तो हम आपको जाने देंगे, बट बिफोर यू गो वी वुड लाइक टू थैंक यू फॉर कमिंग इन एंड Thank गिविंग you अस for having टाइम. me. Thank you for watching. Give you something